Hello friends, today we will discuss photosynthetic pigments. In our previous lecture, we discussed photosynthetic organelles or site of photosynthesis, the structure of chloroplasts. Today we will discuss photosynthetic pigments. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। फोटोसिंथेटिक के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स उसमें आप लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए सनलाइट, राइट, सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनमें मेन है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट, जिनमें मेन है क्लोरोफिल। तो लिहाजा आज का हमारा टॉपिक जो है, दिस इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। Let us see photosynthetic pigments. इससे पहले कि मैं आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बता दूं, लेट मी टेल यू व्हाट इज अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which absorbs light of specific wavelength in visible region. Why? Due to presence of conjugated bonds in it. ये जो पिगमेंट होता है, any type of pigment, it has the capacity to absorb the light. Which light? Of a specific wavelength, किसी खास wavelength। क्योंकि हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, which can be seen, that starts from 380 to 740 नैनोमीटर्स। इस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट, स्पेसिफिक वेवलेंथ का, राइट, किसी खास वेवलेंथ का लाइट। Why? Because these pigments have conjugated bonds. What is a conjugated bond? You know, when single bond, double bond, triple bonds, they are together, they can absorb more energy, right? So this is pigment. Pigment is an organic molecule which absorbs light of specific wavelength in visible region due to presence of conjugated bond in it, right? This is pigment. Okay. Now let us see what's photosynthetic pigment. Photosynthetic pigments are those pigments which absorb light energy, right, and convert it into chemical energy, and are located inside the chloroplast. ये photosynthetic pigments कहाँ होते हैं? These photosynthetic pigments are located in chloroplasts. In chloroplasts ये कहाँ पे होते हैं? They are present inside
the inner membrane of thalakines. Because मैंने आपको कल बता दिया था पिछले लेक्चर में, ये जो राउंड होता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4, 5, ठीक है ना, सिंगल राउंड को थैलाकाइड कहते हैं. एंड ग्रुप ऑफ दीज राउंड्स, डिस्क्स, राइट, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं ग्रानम. ग्रानम इसको कहते हैं, राइट. तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट्स. क्लोरोप्लास्ट में ये कहाँ होते हैं? In the inner membrane of the thalakite. In the inner membrane of the thalakite. What is this thalakite? It's a sac-like. It's a disc-like structure, right? There are number of these structures, sac-like structures, and these are known as thalakites, which are placed one above the other, like the stacks of coin, right? One is called as thalakite and group of them is known as grana, right? Grana. Okay. Now, these photosynthetic pigments are present in chloroplast, and these photosynthetic pigments in chloroplasts ये बनाते हैं these constitute 5% of total dry weight of chloroplasts. 5% of total dry weight of chloroplasts. What is their percentage in the dry weight of chloroplasts? There is about 5% of photosynthetic pigments. These photosynthetic pigments constitute 5% of, about 5% of total dry weight of chloroplasts, right? This is photosynthetic pigments. Now, types of photosynthetic pigments. Types of photosynthetic pigments. Types of photosynthetic pigments. All the photosynthetic pigments, they have been categorized into 3 types. Number 1, chlorophylls. Chlorophylls, right? Number 2, carotenoids. Number 3, phycobilins. These are the 3 types of photosynthetic pigments. Chlorophylls, carotenoids, and phycobilins. Right? Now let us discuss chlorophylls. 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 Right? Chlorophylls. Chlorophylls. Chlor. CHLOR. Chlor means green, and phyll means leaves. Right? Chlor means green and phyll means leaves. These chlorophylls are the green coloring pigments. Green coloring pigments. Right? They are green colored pigments which are found in all photosynthetic organisms. जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उनमें ये क्लोरोफिल्स होते हैं, राइट? चाहे ग्रीन एल्गी हो, ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, चाहे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, राइट? कितने भी प्रोटिस्टन एल्गी हो, हायर प्लांट्स हो, ब्रियोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, इन तमाम में ये क्लोरोफिल्स होते हैं, राइट? क्लोरोफिल्स जो होते हैं, these absorb, ये absorb करते हैं रेड लाइट को, these absorb रेड लाइट, these absorb ब्लू लाइट, ठीक है ना, ब्लू लाइट, ये इस रेड लाइट को और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल्स, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को, ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दे गिव ए कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द प्लांट्स. ग्रीन कलर इसी की वजह से, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को, लेकिन रिफ्लेक्ट किसको करते हैं? ग्रीन लाइट को, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर देते हैं प्लांट्स को. तब तक अगर इनको अनलेस मास्क्ड बाय एनी अदर पिगमेंट, अगर इनको कोई दूसरा
पिगमेंट इनके कलर को मास्क न करे, इनके कलर को हाइड ना करे, इनके कलर को छुपाए ना छुपाए, तब तक ये ग्रीन कलर देते हैं, राइट। ओके, मैंने आपको कहा कि ये जो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल्स, राइट, तो ये क्लोरोफिल्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर देते हैं ग्रीन प्लांट्स को, अनलेस मास्क्ड बाय सम अदर पिगमेंट, राइट। अगर कोई दूसरा पिगमेंट इनको इनके कलर को छुपाए ना, सप्रेस ना करे, राइट। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, इट हैज टू मेन पार्ट्स, नंबर 1 and number 2. Porphyrin head and phytol tail. देखिए, अगर हम क्लोरोफिल की जनरल अपीयरेंस देखेंगे, इट लुक्स लाइक ए टैडपोल। इसकी शेप कैसी होती है? टैडपोल, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, इस हेड को हम कहते हैं पारफायरिन हेड, पार POR pyrene head, right? And this is tail. Head and tail. Head is porphyrin, head porphyrin, and the tail is what? Phytol tail. Phytol tail. Right? Let's come to this porphyrin head. Porphyrin head. The porphyrin head of chlorophyll has 4 pyrrole rings. How many? It has 4 pyrrole rings. It is made up of 4 pyrrole rings. It's the reason why this is known as tetrapyrrole. This is known as tetrapyrrole. Porphyrin head, right? It is made up of 4 pyrrole rings. ठीक है? And hence it's also called as tetrapyrrole or tetrapyrrolic head. It has 4 pyrrole rings, right? Let me draw its structure like this. In center of chlorophyll molecule, in the center, there is magnesium atom. Let me write this, there is magnesium atom. To this magnesium atom, 4 rings are attached. Right? Those rings are like this. I will tell you, this is a ring. This is one ring. Okay? This is another ring. Okay? This is another ring. Okay? This is another ring. Okay? These are 4 pyrrole rings. What's their structure? यहाँ पे इनका होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम, और इनके पास फिर कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. यहां पे और एक एक चेन होती है, लेकिन दैट्स नॉट कनेक्टेड, दैट्स नॉट काउंटेड इन द porphyrin ring. ओके, आई मे से दैट ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, in the center of each chlorophyll molecule there is a magnesium atom. To this magnesium atom, right, there are 4 pyrrole rings. Hence this porphyrin head is also called as tetrapyrrolic head or porphyrin head. Each ring has nitrogen atoms and carbon atoms. I have shown you the nitrogen atom is that which is attached to the magnesium atom.
ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम एटम के साथ इस नाइट्रोजन एटम का, ठीक है, राइट। और इसके अलावा इसमें होते हैं यू नो दीज कार्बन एटम्स, कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। ऑल दीज रिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीथेन ग्रुप, ये आपस में मीथेन ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। दीज पायरो रिंग्स आर कनेक्टेड बाय मीथेन ग्रुप, मीथेन ग्रुप, राइट, ओके। नाउ at the seventh carbon atom, this is seventh, 1 2 3 4 5 6 7, seventh carbon atom, यहां पे इस सेवंथ कार्बन एटम पे फाइटोल टेल यू नो अटैच किया गया होता है। it's attached to the phytol it's attached to the porphyrin head, this tail at seventh carbon atom, ठीक है। this phytol tail, it is a hydrocarbon tail, it's 20 carbon alcohol, this tail has 20 carbon atoms, it's a 20 carbon alcohol, right? It is hydrophobic but lipophilic, it is hydrophobic but lipophilic, right? It is hydrophobic but it's water hating but lipid loving, right? And this tail helps the chlorophyll molecule to get fixed into the lipid pod of thalakine membrane. यही टेल की मदद से, फाइटोल टेल की मदद से एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिपिड पॉड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइन जो होता है उसके साथ फिक्स हो जाता है, ये फिक्स होता है उसमें, राइट। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है इसकी अपीयरेंस टेडपोल लाइक जैसे होती है, राइट। और जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, राइट। हेड पोरफायरिन हेड होता है और टेल फाइटोल साइड चेन या फाइटोल टेल होता है। ये जो हेड होता है इसमें सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम होता है, ठीक है ना, जिसमें जिस मैग्नीशियम एटम के साथ 4 पाइरोल रिंग्स कनेक्ट की गई होती है, ठीक है। तभी इस पाइरोल हेड को, दिस पॉलीफायरिन हेड को टेट्रापाइरोलिक हेड भी कहते हैं और टेट्रापाइरोल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो रिंग्स होती है 4, दिस पाइरोल रिंग्स आर बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। इनमें एक नाइट्रोजन एटम होता है जो मैग्नीशियम के साथ अटैच हुआ होता है और इनके अंदर कार्बन एटम्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज पोरफायरिन हेड। अब इस 7th कार्बन पे टेल अटैच किया गया होता है, उस टेल को फाइटोल साइड चेन या फाइटोल टेल कहते हैं। ये फाइटोल टेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स ए हाइड्रोकार्बन टेल, इट्स ए 20 कार्बन अल्कोहल, राइट। मैं टेल की बात कर रहा हूं। इट इज हाइड्रोफोबिक, right, and it is lipophilic, and by this phytol tail chlorophyll molecule is fixed to the lipid part of inner membrane of thalakite, right? Okay, this is the sequence. And you may see the porphyrin head of chlorophyll जो है ना, it is chemically related to the porphyrin groups of हीमोग्लोबिन के साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता है एंड साइटोक्रोम्स, दो चीजों के साथ इसका स्ट्रक्चर। ये कभी एमसीक्यू आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो क्लोरोफिल का पोरफायरिन हेड होता है ये केमिकली किस
दूसरे पिगमेंट के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिमिलर है। एक तो ये हेमोग्लोबिन के साथ, एक साइटोक्रोम्स के साथ, राइट? ओके, दिस इज क्लोरोफिल। अब टाइप्स ऑफ, दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, राइट? देखिए, देयर आर many टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, राइट? देयर इज क्लोरोफिल ए, राइट? देयर इज क्लोरोफिल बी, राइट? देयर इज क्लोरोफिल सी, देयर इज क्लोरोफिल डी, right? There is chlorophyll E, right? There is bacteriochlorophyll A, right? There is bacteriochlorophyll B, and there is chlorobium chlorophyll. That is known as bacterioviridin. That is known as bacterioviridin, right? These are the types of chlorophylls. Okay. Now there is one chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, 1 2 3 4 5। इसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना? ये बाकी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है जो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, ए एंड बी, ये कहां पे होता है? ये बैक्टीरिया में होता है। आप देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल एक है विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोबियम। दिस इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें अलग एक किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसको बैक्टीरियोविरिडिन कहते हैं, ठीक है? दीज आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, राइट? नाउ आउट ऑफ दीज 8 क्लोरोफिल, यू नो, these types, most common are chlorophyll A and chlorophyll B. सबसे कॉमन कौन है इन 8 में से? किसमें? A, B, C, D, A, E, ये क्लोरोफिल है, ठीक है? क्लोरोफिल। एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, बैक्टीरियो क्लोरोफिल B, और इसके बाद क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसको बैक्टीरियोविरिडिन कहते हैं। इन 8 में सबसे कॉमन जो है, राइट, दैट इज क्लोरोफिल A and क्लोरोफिल B, राइट? Both these chlorophylls, these are insoluble in, these are fat soluble, right? These are fat soluble. These are insoluble in water, but they can be soluble in organic solvents such as ether. Ether में, ठीक है? Both these chlorophylls, chlorophyll A and chlorophyll B, these are insoluble in water, but are soluble in, you know, ether, organic solvents, chloroform, acetone. They can solve there, they can dissolve there, right? Now, chlorophyll A and chlorophyll B are the most common, right? There is a little difference between them. Chlorophyll A, देखिए, chlorophyll A जो होता है, this is light or blue green. This is blue green in color. Blue green in color. Chlorophyll A is blue green in color. You can write down. You should always, once you are, watching my video lecture, it is suggested that you will take a pen and notebook and note down the important points, right? Chlorophyll A जो है, this is blue green in color, whereas chlorophyll B, it is yellow green in color. Yellow green in color. Blue green and yellow green in color, right? And this chlorophyll A, right? This chlorophyll A has methyl group, CH3 group attached to it, right? Whereas chlorophyll B has aldehyde group, CHO group attached to it. I am telling you the difference between chlorophyll A and chlorophyll B. I am telling you that chlorophyll A का जो, अगर हम कलर देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, अगर हम पेपर पे इनको सेपरेट करके इनका कलर देखेंगे, राइट, उसमें हमें क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन लगेगा और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन लगेगा। इसके बाद हमें और एक डिफरेंस है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में, दैट इज कि ये जो क्लोरोफिल ए होता है, इट हैज CH3 group attached to it, methyl group, whereas chlorophyll B has aldehyde group attached to it. मैं आपको समझाऊंगा what's this. This is a magnesium atom, or okay, central magnesium atom.
ओके, इसके साथ कौन सी अटैच की गई है? 4 रिंग्स, उनको क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग्स। ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे रिंग। अब मैं रिंग ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कार्बन एटम्स है 1 2 3 and 4 5 6 7 8। यहाँ 7 पे मैंने आपको बता दिया था फाइटोल टेल अटैच हुआ होता है। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए की बात करता है। ये जो तीसरा कार्बन एटम होता है, यहां पे एक ग्रुप होता है विच इज अननोन ग्रुप, आर ग्रुप और एक्स ग्रुप। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए में कार्बन एटम नंबर 3 दूसरी रिंग का कार्बन एटम नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में दूसरी रिंग के कार्बन एटम नंबर 3 पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है अटैच टू इट। राइट, दिस इज, मैं आपको कह रहा हूं कि क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन इन कलर है, मैं आपको कह रहा हूं कि क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन इन कलर है। ये हमें कैसे पता चल जाता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में इनको सेपरेट करते हैं तो हमें ये कलर दिखाई देता है। राइट, इसके अलावा मैं आपको कहता हूं कि आउट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, जो दूसरी पायरोल रिंग होती है, उसका कार्बन एटम नंबर 3 वहां पे एक ग्रुप होता है। ठीक है ना, इट कैन वेरी दिस ग्रुप है, आर ग्रुप, आर पोजिशन जिसको कहते हैं, एक्स पोजिशन है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप इस तीसरे कार्बन एटम के पर अटैच हुआ होता है, तो जबकि क्लोरोफिल बी में इस तीसरे कार्बन एटम की पोजीशन पे दूसरे रिंग, पायरोल रिंग के तीसरे कार्बन एटम पोजीशन पे आपको मिलेगा अल्डिहाइड। ठीक है, ऑफ ऑल, राइट, ऑफ ऑल दीज क्लोरोफिल्स, अब हमने पहले कहा था 8 क्लोरोफिल्स, उसमें ज्यादा कॉमन कौन है? क्लोरोफिल ए। अब सब में से ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स में, ठीक है ना, आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सबसे कॉमन फॉर्म जो है क्लोरोफिल ए। कौन होता है बेटा? क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल। ठीक है ना, दिस क्लोरोफिल ए एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स, इसकी बड़ी सारी फॉर्म होती है। ठीक है ना, दिस क्लोरोफिल ए एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, सपोज दीज आर द फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है ना, एंड दीज फॉर्म्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्लोरोफिल ए की फॉर्म्स, मैं क्लोरोफिल बी की बात नहीं करता, मैंने आपको कहा था हमारे पास 8 क्लोरोफिल्स हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई, ये हो गए 5। फिर मैंने कहा बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ठीक है ना, हो गए 5 और 2 हो गए 7। इसके बाद मैंने आपको कहा कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल होता है जिसको कहते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जिसका जो क्लोरोबियम में पाया गया है, जिसका नाम है बैक्टीरियो वेरिडिन। राइट, आप देखिए, उनमें से फिर मैंने आपको कहा कि 2 कॉमन है। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल। ठीक है ना, मैंने आपको कहा कि ये दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर है, एंड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद मैंने इनका थोड़ा डिफरेंस बता दिया कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, जबकि क्लोरोफिल बी में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो ऑफ ऑल दीज फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल इज द मोस्ट कॉमन and widely distributed pigment. Right? This chlorophyll A exists in various forms. Suppose this is 1 form, this is 2 form, 3, 4, 5, 6. And ये forms जो chlorophyll, same chlorophyll A की different forms होती है, these differ slightly from each other because of their position in the membranes. कौन कहां पे है? In the membranes of थैलाकाइट्स, इनर मेम्ब्रेन पे ये होते हैं, वहां इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल ए, दे शो डिफरेंट रेड एब्जॉर्प्शन पीक्स। सपोज कोई 670 नैनोमीटर्स पे रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट, कोई 680 नैनोमीटर्स पे रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, कोई 690 नैनोमीटर्स पे रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, कोई 700 नैनोमीटर्स पे रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। रेड एब्जॉर्प्शन पीक इसको कहना है, पीक, रेड एब्जॉर्प्शन पीक।
राइट। तो लिहाजा ऐसे क्लोरोफिल्स को हम या तो क्लोरोफिल सी 670 नैनोमीटर्स कहते हैं, या क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर्स कहते हैं, या क्लोरोफिल 690 नैनोमीटर्स कहते हैं, या क्लोरोफिल 700 कहते हैं, या नटसली हम कहते हैं P700 बाय P इज द पिगमेंट। व्हाट इज द पिगमेंट? दैट इज क्लोरोफिल ए। या P670, दिस इज व्हाट इज P, दिस इज पिगमेंट, विद पिगमेंट क्लोरोफिल ए, राइट। मैंने कहा कि ऑफ ऑल द क्लोरोफिल्स आई एम टेलिंग यू दैट क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट widely distributed pigment. It exists in several forms, and these several forms of chlorophyll slightly differ from each other on two bases. One, on the basis of their position on the membranes of thalakines, internal membrane, and on the basis of their red absorption peak. रेड लाइट को किस वेवलेंथ पे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे अगर 670 नैनोमीटर्स पे क्लोरोफिल ए रेड लाइट को एब्सॉर्ब करता है, हम लोग कहते हैं दिस इज क्लोरोफिल 670 या P670। 680 पे करता है, हम लोग कहते हैं दिस इज क्लोरोफिल 680। 690 नैनोमीटर्स पे रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है, रेड एब्सॉर्प्शन पीक, तो हम लोग कहते हैं कि क्लोरोफिल ए 690। या 700 पे करता है कोई, राइट, हम उसको कहते हैं कि क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर्स या P700, राइट। ये जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल पिगमेंट। दिस इज नोन एज बिकॉज it occurs in all the photosynthetic organisms, right? This is primary. Also, it has two names. It's either called as primary photosynthetic pigment, right? Primary photosynthetic. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Primary photosynthetic. क्यों इसको primary photosynthetic कहते हैं? किसको? क्लोरोफिल ए को. Because it is the only pigment which directly takes part in light reaction of photosynthesis. बाकी जो पिगमेंट्स हैं, फिर रह गया हमारे पास क्लोरोफिल, B, C, D, E. These are known as accessory pigments. Accessory or accessory pigments. Because they don't take part in light reaction of photosynthesis directly. What they do, they absorb the light, right? And then they transfer this, light to the chlorophyll A. ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी हमारे पास क्लोरोफिल B है, C है, D है, E है, या इवन फॉर दैट मैटर अगर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये वो पिगमेंट है जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो डायरेक्टली लाइट रिएक्शन में पार्ट प्ले नहीं करते हैं, वो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और क्या बोलते हैं, उस लाइट को ये अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। इसीलिए इस क्लोरोफिल को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इसीलिए इस क्लोरोफिल का दूसरा नाम ट्रैप क्लोरोफिल है, राइट, क्योंकि यही रिएक्शन करता है, बेसिकली यही मदद करता है, यही डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन लाइट रिएक्शन। बाकी जो आपके पास B, C, D and E है क्लोरोफिल्स, ये डायरेक्टली they are not known as reaction center. They don't start the reaction. They are not known as the trap chlorophylls. Trap chlorophyll is only the chlorophyll A because it can take part directly in light reaction. Whereas these, once they absorb light from the sun, they just transfer this light to the chlorophyll so that this can manage the light reaction, right? Now, it's the reason why this was called as primary photosynthetic pigment. Why? Because it directly takes part in light reaction, right? Whereas the other pigments B, C, D and E, they don't take part directly in light reaction. They just absorb the light and transfer that light to the chlorophyll. It's the reason why chlorophyll A is known as reaction center. It's the reason why chlorophyll A is known as trap chlorophyll, right? Now, this chlorophyll A is also called as universal photosynthetic pigment because it occurs in all photosynthetic these organisms except bacteria, because bacteria have their own bacteriochlorophyll A and bacteriochlorophyll B. These are the reasons why this chlorophyll A is called as photosynthetic primary photosynthetic pigment and universal photosynthetic pigment.
यूनिवर्सल इसको इसलिए कहते हैं कि ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में अपना एक होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, राइट? दीज बायोक्लोरोफिल्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, कैरोटिनॉइड्स. ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, these carotenoids are another type of photosynthetic pigments, right? These carotenoids can be brown in color. These carotenoids can be yellow in color. These carotenoids can be orange in color, right? These carotenoids can be red in color. इनके कलर्स क्या होते हैं? येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, these carotenoids are basically accessory pigments along with chlorophyll A, B, C, D and E. These are called as accessory pigments. Why? Because they absorb the light and they transfer this sunlight to the ultimately the chlorophyll A. ठीक है. They don't take part directly in light reaction. ठीक है. अच्छा, इन कैरोटिनॉइड्स का और एक फंक्शन है, these carotenoids, right? These prevent photo-oxidation of chlorophyll. Photo-oxidation of chlorophyll बचाते हैं breakdown of chlorophyll by the help of light energy. This is prevented. These protect the chlorophyll A molecule. Chlorophyll A molecule को ये बचाते हैं photo-oxidation से. ठीक है ना, हीट से. तभी इनको शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं. कैरोटिनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट्स? बिकॉज दे शील्ड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. कैसे? फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन एंड फ्रॉम हीट, एक्स्ट्रा एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. कभी कभी ये डैमेज कर सकता है, राइट? जैसे हमारे बॉडी में मेलानिन, ये सनलाइट में क्यों बनता है? ये एक्सेसिव हीट से हमें बचाता है. अदरवाइज अगर हमारी बॉडी में पिगमेंट मेलानिन नहीं बनता तो ये जो हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन है, ये अंडरलाइन जो हमारे बॉडी टिश्यूज है उनमें जाके हमें डैमेज कर लेते. इसी तरह से क्लोरोफिल ए को कैरोटिनॉइड्स बचाते हैं. ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये बेसिकली फैट्स है ज्यादातर. ठीक है, तो ये बचाते हैं क्लोरोफिल ए को. किससे? एक तो इस क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन से और एक एक्सेसिव हीट से. एक्सेसिव हीट जो सनलाइट की होती है, तब जाके इनको शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड ए शील्ड टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ओके, ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, दीज आर टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. एक तो है कैरोटीन्स, और एक तो है ज़ैंथोफिल्स. क्या है बेटा? ज़ैंथोफिल्स. ये जो कैरोटीन्स होते हैं, ये रेड कलर के हो सकते हैं. ठीक है ना, ये ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, राइट? कैरोटीन्स. ठीक है, इन कैरोटीन्स में कार्बन और हाइड्रोजन भी होता है. ठीक है ना. आपको जो इनका कैरोटिनॉइड्स का इनको पहली बार कैरेट में पाया गया था. ठीक है ना. हाँ, तो लिहाजा ये कार्बन और हाइड्रोजन में होता है. ठीक है ना. सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं. ये रेड कलर के हो सकते हैं, ये ऑरेंज कलर के हो सकते हैं. ठीक है ना. तो इसके बाद है ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं ये येलो इन कलर होते हैं. क्या होते हैं बेटा? येलो इन कलर. ये कैरोटीन्स क्या थे? रेड और ऑरेंज इन कलर. ठीक है. ज़ैंथोफिल्स किसके होते हैं? येलो इन कलर, राइट? ये येलो इन कलर होते हैं. ज़ैंथोफिल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है, राइट? जबकि कैरोटीन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता था. ठीक है. जबकि इसमें क्या है? इसमें कार्बन भी है ज़ैंथोफिल में, और हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है. ठीक है. ज़ैंथोफिल्स आपको मिलेंगे जैसे ल्यूटीन. ठीक है, ये एक ज़ैंथोफिल है. जैसे जियाज़ैंथिन, ये जो येलो कलर ऑफ मेज होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ जियाज़ैंथिन विच इज अ ज़ैंथोफिल. ये जो ऑटम फोलिएज होता है, ठीक है ना, मौसमी खजान में जो ये लीव्स येलो हो जाते हैं, ठीक है ना, दिस ल्यूटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलरिंग इन ऑटम फोलिएज. आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना बेटा? ओके. इसके बाद आपको ब्राउन एल्गी जो है, ठीक है ना, उनमें एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं फीकोज़ैंथिन.
क्या होता है, ये एमसीक्यू है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है. इन ब्राउन एल्गी देयर इज अ पिगमेंट दैट इज नोन एज फिकोजेंथिन. व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पिगमेंट? दैट इज ब्राउन. व्हाट इट इज? What to which group of pigments it belongs? It's a xanthophyll. Normally the xanthophylls are yellow in color, right? But there is one type of xanthophyll which is brown in color. That's known as ficoxanthin, right? These were these carotenoids. ठीक है. अगर आपको मैं बता दूं, जब ऑटम आ जाता है ना, क्लोरोफिल कम हो जाता है, इसका अमाउंट क्या बोलते हैं, कम हो जाता है लीव्स में. जबकि ये बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है, इनका अमाउंट, कैरोटिनॉइड्स का, फाइकोबिलिन्स का, इनका अमाउंट बढ़ जाता है. तब जाके वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है. ठीक है. ऑटम फोलिएज कुछ प्लांट्स में रेड कलर के वो जो ऑटम जब आना शुरू हो जाता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की मिकदार कम हो जाती है और ये जो बाकी कैरोटिनॉइड्स हैं इनकी तादाद बढ़ जाती है. यही वजह है कि कभी कभी ये जो आप लोग देख सकते हैं उनका कलर वो रेड हो जाता है लीव्स. ठीक है. इसके बाद है फाइकोबिलिन्स. अच्छा, फाइकोबिलिन्स, राइट. फाइकोबिलिन्स आर अनदर टाइप ऑफ photosynthetic pigments. These phycobilins, these are protein linked pigments. इसलिए इनको बिल्ली प्रोटीन्स कहते हैं. These are protein, they are linked with proteins. ठीक है ना. ये जो फाइकोबिलिन्स हैं, these are found in red algae. रेड एल्गी में आप इनको पाओगे एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में. ठीक है. रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. और ये भी फाइकोबिलिन्स भी पिगमेंट्स को, बाकी पिगमेंट्स को बचाते हैं फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय हीट. ठीक है ना. ये फाइकोबिलिन्स, दीज आर प्रोटीन लिंक्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट. दे आर फाउंड इन रेड एल्गी एंड दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया. एंड अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स. फाइकोसायनिन्स are those phycobilins which are found in blue green algae. Phycoerythrins, these are found in red algae. Okay, abundant amount में ये red algae में पाए जाते हैं. These are phycobilins. मैंने आपको कहा कि phycobilins are protein linked photosynthetic pigments. That means they are linked with proteins, hence they are known as bilirubins. They save other pigments from destruction by heat, right? They are found in red algae and blue green algae. Accordingly, there are two types. Phycocyanins are those phycobilins which are found in blue green algae. Phycoerythrins are those phycobilins which are found in red algae. Okay? With that, we have completed this photosynthetic pigments, and in our next video lecture, we will discuss photosystems. Till then, keep learning. Thank you. Bye. Okay.